Hello students. So students, in the previous part of the video, we had discussed exercise 6.3 from NCERT Maths book. Okay. So student, in today's video, we will discuss some miscellaneous problem of this chapter. Okay. So today we will discuss miscellaneous problem. Miscellaneous problems. Okay. Miscellaneous problems are those problems which is the summary of whole chapter. Okay. So suppose student, we have to solve, the first question for today is solve -8 less or equal to 5x minus 3 less than 7. Okay, you have to solve this inequality. Okay, so by seeing this inequality we can say that this is the linear inequality in one variable. Okay, but this type of inequality we did not have solved yet. Okay, so this is also same like the previous. Whatever method we have applied in the earlier inequalities, same we will apply for here also. Okay, so for solving any inequality we need to find the value of the unknown variable, okay, which satisfy the inequality. So we have to find the value of x. So for getting the value of x, we have to get some expression in which only x comes. So what we will do, student, first we all know that in any inequality we can add or subtract any number to the both side. It does not have any effect on the inequality. So because we are solving for x, so for this, if we will add 3 in this inequality in the all sides, so what we will get, it will be -8 plus 3 less than or equal to 5x minus 3 plus 3, and it is also 7 plus 3. What I have done, student, I have added 3 in this inequality. Okay, 3 in this inequality, because we can add or subtract any number to the any side of any inequality. Okay, so see, here will be -8 plus 3, it will be -5, it will be 5x, and it will be 10. Okay, now because we need to find the value of x, so we need x only, but here is 5x is coming. So what we can do, we can divide this inequality by 5. Okay, so when we will divide this inequality by 5, we will get -5 by 5 less or equal to 5x by 5 less than 10 by 5. Okay, so after solving this we will get -1 less or equal to x less than 2. Okay, the value of x is lies between -1 to 2. The value of x lies between -1 to 2, and whatever steps we have done in for solving this inequality, we can write it like here we have added 3, and here divided by 3. Okay, divided by 5. Okay, so this thing you can write. So after all the steps we got the value of x, that is -1 to 2. X is either greater or equal to -1 and less than 2. So when we have to write this in terms of interval means in the brackets. So how we will write, a student? X belongs to, see, the value of x is greater or equal to. So when you see the slack inequality, so in that side we will always put a closed bracket, क्योंकि x की जो value है वो -1 भी है और -1 से बड़ी है. The meaning of this is that x is either greater or equal to -1. तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -1 भी हो सकती है और उससे बड़ी भी, तो -1 हो सकती है. सो एट -1 देयर विल बी क्लोज्ड इंटरवल, और कहां तक जा रही है? 2 तक, और 2 से कम होनी चाहिए, यानी कि 2 नहीं होनी चाहिए. सो एट 2 विल बी ओपन इंटरवल. सो व्हेन यू विल राइट दिस सॉल्यूशन इन द ब्रैकेट, यू विल राइट लाइक दिस. ओके, द मीनिंग ऑफ दिस इज ओनली दिस. हमेशा जब हम लोग ब्रैकेट या इंटरवल में लिखते हैं, क्लोज इंटरवल में या ओपन इंटरवल में, तो मिनिमम टू लोअर, मिनिमम टू हायर लिखते हैं. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x इज स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड एंड विद 2. द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, तो -1 पे ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे क्लोज हुआ, और यहाँ पे लेस देन का साइन है. लेस देन हमेशा एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, तो वहां पर ओपन इंटरवल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में होगी. -1 हो सकती है लेकिन 2 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के केस में वो वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं जो लिखी होती है.
तो x 2 से छोटा है तो 2 पे ओपन, और x जो है -1 के बराबर और बड़ा है तो -1 पे क्लोज्ड। जब भी आप स्लैक इनइक्वालिटी देखोगे तो स्लैक इनइक्वालिटी के केस में हमेशा वो वैल्यू इंक्लूड होती है, तो अगर वो वैल्यू इंक्लूड होगी तो वहां पे क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। सो बाय दैट यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। वन मोर टाइप क्वेश्चन वी कैन सॉल्व स्टूडेंट, whatever steps we have done for the earlier inequalities, the same we will do for this type of question also, ठीक है। So now see again for question number 2 for today, that is solve -5 less or equal to 5 minus 3x by 2 less or equal to 8, ठीक है। We have to solve this inequality. So again we will do the same step student. We need to find the value of x. See, here is the denominator 2, here is the 1, here is the 1 also. So whenever we see any denominator, so I want to remove that denominator, okay. So what I will do student, I will multiply this whole inequality by 2, multiplying by 2, ठीक है। Why I am multiplying it? Because I want to get the value of x only, and the value of x we will get in that case when 2 will not be there, okay. So that 2 should be eliminated. So for eliminating 2 we will multiply whole expression by 2. So when you will multiply it, so here will be -5 into 2 greater or equal to 5 minus 3x upon 2 into 2, and here will be 8 into 2, ठीक है। So that 2 will be cancelled. So in this side -10 will left, in that side, in the middle side will be 5 minus 3x will come, and in right hand side 16 will come, ठीक है। Now I want this to I want to reduce this term, I want to reduce in x. So for reducing in x I want to first eliminate 5. So what I will do, I will subtract -5 in all the sides. So when I will do that, here I will get -10 minus 5. Same step as we did for the earlier question, same we will do for here, okay. So I want to eliminate this 5, so I am subtracting -5 in all sides. So -10 minus 5 less or equal to 5 minus 3x minus 5 less or equal to 16 minus 5, ठीक है। So it will become -15 less or equal to -3x less or equal to 11, ठीक है। Now student, I want only x, I want only x, ठीक है। So for, but here is 3x, so first what you do, you divide this expression by 3. Why the sign is not changed student, why the sign is not changed? Because in addition and subtraction sign does not change. In multiplication and division also sign does not change when we multiplied the inequality by a positive number. See, in the first case we have multiplied the inequality by 2. तो जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इनइक्वालिटी सेम रहती है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तब भी इनइक्वालिटी सेम रहती है। इनइक्वालिटी चेंज तब होती है जब हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे केवल x चाहिए, तो पहले मैं इस 3 को रिमूव करना चाहता हूँ। सो आई विल डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 3. सो -15 by 3 greater or equal to -3x by 3, 11 by 3, ठीक है। Now see, here it will become -5 less or equal to -x less or equal to 11 by 3, ठीक है। Now student, I want x, I want only x, but here is coming -x. So for eliminating this minus sign, I will multiply this whole inequality by -1. So when I will multiply by -1, so it will become 5, it will become x, and it will become -11 by 3, ठीक है। But when we will multiply the inequality by negative number, the sign of inequality changes. So see, here is less than or equal to, so it will become greater or equal to, ठीक है। And here is also less than or equal to, it will also become greater or equal to, ठीक है। Why this happens? Because this expression, this inequality is multiplied by negative number, and whenever we multiplied any
inequality by a negative number, so the sign of inequality changes. So 5 is greater or equal to x and greater or equal to -11/3, ठीक है। तो अगर इसी को सीक्वेंस में लिखना हो स्टूडेंट तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -11/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। देखो यहां से पढ़ो इसको, अगर पढ़ोगे अगर तो x की वैल्यू लेस और इक्वल टू 5 है और ग्रेटर और इक्वल टू -11/3 है, तो इसी को मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है। तो -11/3 इज लेस और इक्वल टू x and less or equal to 5. So see, from here we can write the value of x, that is x belongs to -11/3 and 5 and closed interval. In both sides closed interval will be there because in both side it's like inequality used. मतलब कि x की जो वैल्यू है वो -11/3 से 5 तक जाएगी, ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड होगा और इनके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड होगी, ठीक है। सो बाय दैट वे वी कैन सॉल्व स्टूडेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। देखो इसको पढ़ोगे अगर ना तो देखो -11/3 किससे छोटा है, x जो है वो किससे बड़ा है, -11/3 के बराबर है और उससे बड़ा है, और x जो है वो 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। तो अगर इसी को मैं इस सीक्वेंस में लिखूंगा तो ये यही चीज होगा, ठीक है। आइदर आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, बात सेम ही, ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज किए हो, जब आप ऐसे लिखे हो तो इस साइन में था, जब आप उल्टा लिखे हो तो इस साइन बदल गया, ठीक है। साइन वही है, मतलब भी वही है, बस क्योंकि हम लोग कभी भी इंटरवल लिखते हैं, किसी भी x की वैल्यूज लिखते हैं ब्रैकेट के केस में, तो उस केस में हमेशा स्मॉलर से लार्जर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉलर से लार्जर। -11/3 स्मॉलर है, 5 क्या है, लार्जर, और x की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में घूम रही है, मतलब कि इन्हीं दोनों बीच में लाई कर रही है। x की वैल्यू -11/3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और उनके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, सो प्लीज नोट डाउन इट। Now student, third question for today is that solve the system of inequality. First inequality is 3x minus 7 is less than 5 plus x, and the second is 11 minus 5x is less or equal to 1, ठीक है। So I told you now what is system of linear inequality. Whenever we have more than one linear inequality, so that inequalities are known as system of linear inequalities. So how we will solve, student? Very simple method. You solve each inequality separately, okay, and after that you represent them on the number line. After representing number line, whatever region will be common between these two inequality, that will be the solution of the system of inequalities, okay. So first we will take it, suppose it is first inequality, it is second inequality. So from inequality number first, we have to solve 3x minus 7 is less than 5 plus x. So we know how to solve this type of inequality. Whenever we solve this type of inequality, what we do, in the left hand side only x should come, and in the right hand side only number should come. So firstly I want to remove this x from RHS. So what I will do, I will subtract x from both sides. So it can be written as 3x minus 7 minus x less than 5 plus x minus x, ठीक है। So 3x minus x will become 2x minus 7, 3x minus x will be 2x minus 7 less than x, and x will be cancelled, so 5, ठीक है। Now what I told you, in the left hand side only variable should come, but here -7 is coming, so if we will add 7 in both sides, we will eliminate this -7, okay. So this can be solved by 2x minus 7 plus 7, and inside also 5 plus 7, okay. So this 7 will be cancelled, so 2x is less than 12 will come, ठीक है, और x. Now after that we need to find the value of x now. So if we will divide this expression by 2, then we can get the value of x. So that can be written as 2x by 2 is less than 12 by 2. So from here we can write x is less than 6, ठीक है। So it is the solution of first part, that is x is less than 6, okay. So leave your answer up to here only, okay. Now
for second, from second inequality, from inequality number second, from second is 11 minus 5x is less or equal to 1. Now we have to put only variable in the left hand side, so I want to remove this 11 from the left hand side. So what I will do, I will subtract 11 from both sides. So 11 minus 5x minus 11 less or equal to 1 minus 11. ठीक है, so that 11 or minus 11 will be cancelled. So minus 5x is less or equal to minus 10. Now what you do, now we want x now student, we want x. So here is minus 5x. Okay, so when we will divide this by minus 5x, minus 5x by minus 5x, why, sorry, by 5 only, because we want x only. ठीक है, if we will divide this by 5, so here will come minus x and here will come minus 2. Okay, so suppose I am dividing this expression by 5, only 5, not minus 5. So minus 5x by 5 less or equal to minus 10 by 5. ठीक है, so here will come minus x and here will come minus 2. ठीक है, now minus x is less or equal to minus 2. ठीक है, this comes, but we need to find x now. So for getting x we need to multiply this expression by minus 1. So when we will multiply this expression by minus 1, it will become x and it will become plus 2, and whenever we multiply the inequality by a negative number, the sign of inequality changes. So this will become x is greater or equal to 2. स्टूडेंट कभी ऐसा मत करना कि माइनस माइनस कैंसिल कर देना, ऐसा कभी मत करना। इनइक्वालिटी केस में कभी कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि कैंसिल कर दोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करोगे। माइनस एक्स इज लेस और इक्वल टू माइनस 2, बट वी नीड टू फाइंड एक्स ओनली। सो फॉर गेटिंग एक्स वी कैन मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय माइनस 1। सो जब आप इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बिकम एक्स, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 विल बिकम एक्स and this will become 2. And after multiplying minus 1, the sign of an inequality will be changes, so that will be this. ठीक है, so the solution of first is x is less than 6 and the solution of second is x is greater than 2. so अब इन दोनों को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज आई हैव ड्रॉन अ नंबर लाइन। ठीक है, नाउ इट इज 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले को रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरे केस में 1 2 3 4 5 और इधर नेगेटिव नंबर होंगे। नाउ x इज लेस देन 6 स्टूडेंट, x इज लेस देन 6। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, मतलब कि 6 नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 6 पे आप ओपन सर्कल बनाओगे और इसके पहले की सारी वैल्यूज x की वैल्यूज होगी। ठीक है, ठीक है, ये पहले का सोल्यूशन हो गया नंबर लाइन पे। x इज लेस देन 7 ना, इट इज फॉर वन इनइक्वालिटी, इट इज फॉर सेकंड नंबर ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट का शो कर रहा हूं और दूसरे लाइन पे सेकंड का शो करूंगा। दूसरी लाइन पे क्या है स्टूडेंट? x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 के बराबर है और 2 से बड़ी है। तो 2 यहां पर है ना, तो 2 पे हम लोग डार्क सर्कल बनाए और 2 से बड़ी। ठीक है, अब ध्यान दो स्टूडेंट, पहले केस में ये जो शो कर रहा है, ये जो सोल्यूशन शो कर रहा है वो किसका शो कर रहा है? x इज लेस देन 6 का। ये सोल्यूशन है x इज लेस देन 6 का, और ये जो सोल्यूशन है वो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 का। अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच में कॉमन रीजन क्या है? इन दोनों के बीच में कॉमन रीजन क्या है? 2 से, देखो यही दो पार्ट है, 2 से 6 तक इन दोनों के बीच में कॉमन रीजन होगा, क्योंकि ये 6 से छोटा है और ये 2 से बड़ा है। तो इनका जो कॉमन रीजन होगा वो कहां से कहां लाई करेगा? 2 से लेकर 6 तक। लेकिन कौन सी वैल्यू लेंगे, 2 लेंगे या 6 लेंगे? तो ध्यान दो, 2 हम लोग लेंगे, क्योंकि देखो जब इस पे हम लोग x लेस देन 6 देखे थे, तो जो इसमें x लेस देन 6 में 2 भी आएगा, तो 2 होगा, 2 इसमें भी आएगा और 2 इसमें तो है ही। तो इन दोनों में 2 तो है ही, यानी कि मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, 6 यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी भी तो है। तो 2 से बड़ी है तो 6 हो सकती है, तो इस केस में 6 होगा और इस केस में 6 नहीं होगा। तो अगर दोनों में नहीं है, दोनों में होता तो 6 लेते, लेकिन दोनों में नहीं है, एक में है और एक में नहीं है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 तो होगी, लेकिन वो 6 से क्या होगी? छोटी।
इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन देखो। देखो x was less than 6, तो लेस देन 6 में 2 तो आएगा, तो दोनों में ये वाला पॉइंट तो आ ही रहा है, तो ये वाला पॉइंट तो दोनों में कॉमन है ही। लेकिन पहले वाले में 6 इंक्लूडेड नहीं है और दूसरे वाले में 6 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा में 6 तो आएगा ही। अगर दोनों में 6 इंक्लूडेड होता, क्योंकि यही दो रीजन कॉमन मिलेगा, यहां से यहां तक रीजन कॉमन मिलेगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि इसके बाद दोनों में कॉमन नहीं है, ये इसके बाद भी है और ये 6 के बाद भी है, तो कॉमन रीजन इन दोनों के बीच में 2 से 6 वाला ही बीच में है। तो 2 पे हम लोग लेंगे वैल्यू, क्योंकि 2 तो दोनों में आ रहा है, लेकिन 6 दोनों में नहीं है, पहले वाले में 6 नहीं है, दूसरे वाले में है, तो इसीलिए x की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 के बराबर है और 2 से बड़ी है और 6 से छोटी है, तो x की वैल्यू ये होगी। तो जब आप इसको इस इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखोगे, सो x विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 6, और इसको जब आप इंटरवल में लिखोगे, सो x बिलोंग्स टू 2 पे स्लैक इनइक्वालिटी है, तो क्लोज्ड इंटरवल, एंड 6 पे ओपन इंटरवल। The solution of this question will be 2,6. ठीक है। जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी दिया होता है तो ग्राफिकली तो हम लोगों ने सीखा है कैसे करते हैं, लेकिन जब अलजेब्रिकली करना होगा आपको, तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और दोनों के केस में कॉमन रीजन लिखोगे, जो कॉमन रीजन होगा वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन। ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो प्लीज नोट डाउन इट। पहले दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व कर लो, दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, फिर देखो कि कॉमन रीजन क्या है, व्हाटएवर द कॉमन रीजन विल बी देयर, दैट विल बी द सॉल्यूशन। ओके, now student, some important points which can be very beneficial for solving the different type of question is that you can write some important points, now see, पहला पॉइंट क्या है, if a into b is greater than 0, ठीक है, और a divided by b greater than 0, ठीक है, where b cannot be 0, so in that case student, अगर a into b दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है या दोनों का डिवीजन 0 से बड़ा है, तो इस केस में हम ये मानते हैं दो केस हो सकता है। दो नंबर का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, दो नंबर का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, वो तब पॉजिटिव होगा या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, ये तब होगा देन आइदर a is also greater than 0 and b is also greater than 0, or a is less than 0 and b is less than 0। ठीक है, मतलब कि दोनों ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव। जैसे कि मान लो a है 5 और b है 3, तो 5 into 3 15 पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव थे। ऐसे ही मान लो a है -3 और b है -5, सो -3 into -5 माइनस प्लस दैट विल बी 15 ऑल्सो। तो दो नंबर का प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव होता है स्टूडेंट जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इफ या अगर a into b लेस देन 0 है या और a डिवाइड बाई b लेस देन 0 है, तो ये मतलब कि a into b लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर a into b नेगेटिव है या a डिवाइड बाई b नेगेटिव है, देन क्या केस होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, या जब दोनों में से कोई एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव। देन आइदर a is positive and b is negative or a is negative and b is positive। ठीक है, देखो दो नंबर का प्रोडक्ट कह लो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कह लो या दो नंबर का डिवीजन कह लो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तब होगा जब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ऐसे ही दो नंबर का डिवीजन भी पॉजिटिव तब होगा जब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। इसलिए मैंने लिखा है आइदर a into b greater than 0 और a by b greater than 0। ये दोनों का प्रोडक्ट है और ये दोनों का डिवीजन है। दो नंबर का प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन
पॉजिटिव तब होता है या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और दोनों दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव और दो नंबर का डिवीजन नेगेटिव तब होता है जब या तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता भी है, ठीक है। मान लो आपके पास दो नंबर है, मान लो मैंने लिया A5 एंड B5, ठीक है। तो A इंटू बी कितना आएगा 25, जो कि पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है। अगर मैंने A को -5 लिया और B को -5 लिया तब भी A इंटू बी कितना आएगा 25 ही आएगा। तो देखो पहला वाला केस मिल रहा है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होता है या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। और दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव हो। वही चीज डिवीजन में भी फॉलो होता है, प्रोडक्ट और डिवीजन में सेम चीज होता है। दो नंबर का डिवीजन भी पॉजिटिव तब होगा जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और दो नंबर का डिवीजन नेगेटिव कब होगा जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव। तो ये चीज हमें तब फायदा करेगी जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन इनइक्वालिटी में सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो इस आप पहले ये लिख लो, ठीक है। नाउ अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज हियर, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पलर में है, और अगर एग्जाम्पलर में है तो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दो, जैसे कि एक क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरे पास कि सॉल्व x - 3 डिवाइड बाई x - 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा दिया हो p/q फॉर्म में दिया हो तो आप मेथड वही है। देखो ये a/p वाला फॉर्म है, इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो इस केस में कंडीशन क्या होता था स्टूडेंट, इस केस में कंडीशन ये होता था कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो आपको करना क्या है, पहले आप क्या करो, दोनों से क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर दो। क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब ये होता है स्टूडेंट x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो मान लो कि मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है और यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो जब मैं x - 3 को 0 के इक्वेट पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, और जब x - 5 को 0 के इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी 5। सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, दो वैल्यू x की, एक मिलेगी 3 और एक मिलेगी 5। ऐसे सारे क्वेश्चन में करना है इस टाइप वाले क्वेश्चन में। तो यहां से मुझे एक x की वैल्यू 3 मिल गई, एक x की वैल्यू 5 मिल गई। सो वी कैन राइट x = 3 एंड x = 5 आर क्रिटिकल पॉइंट। जो भी x की वैल्यू मिलती है वो क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब करना क्या है आपको स्टूडेंट, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। नंबर लाइन पे इस क्रिटिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करो। मान लो नंबर लाइन है तो इधर यहाँ 3 5, ठीक है, और इधर कहीं 0 होगा, इधर मान लो 0 है, कहीं कुछ भी ले लो 0 या कुछ भी, आप मान सकते हो ना कि 3 और 5 ले ले, पहले 3 आएगा उसके बाद 5 आएगा, ठीक है। और इधर कहीं 0 होगा और इधर ये एक नंबर लाइन थी स्टूडेंट, ध्यान देना ये एक नंबर लाइन थी, और इस नंबर लाइन में मैंने 3 और 5 लिख लिया। 3 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, और 3 के पहले 2 1 0 लाइक दैट आएगा। आप देखो जैसे ही नंबर लाइन को हम लोग 3 और 5 को लोकेट किए, ये नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक 3 से छोटा वाला रीजन, एक 3 और 5 के बीच वाला रीजन, और एक 5 से बड़ा वाला रीजन, ठीक है। ये इधर होगा हमारा प्लस इनफाइनाइट और इधर होगा मेरा माइनस इनफाइनाइट। यहीं पे नहीं होगा, मतलब ये एरो लगाया ना तो इसका मतलब कि द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे माइनस इनफाइनाइट और राइट मोस्ट पोजीशन पे प्लस इनफाइनाइट। तो हमें इन तीनों रीजन में से कौन सा रीजन लेना है स्टूडेंट, तो इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि आप राइट से स्टार्ट करो, ठीक है, राइट से स्टार्ट करो। राइट वाले रीजन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ये वाला रीजन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो इसको प्लस लो और फिर ऐसे ही अल्टरनेट लिखते जाओ, प्लस है फिर माइनस फिर प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये ट्रिक है, अब मैं बताऊंगा ये आता भी कैसे है, ठीक है। ये वाला रीजन हमेशा प्लस ही क्यों होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी के लिए क्या करो, पहले आप नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ कर लो, उसके बाद वो नंबर लाइन 3 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। अब उस सेगमेंट का साइन क्या होगा, तो आप राइट से चलना, राइट वाला रीजन पॉजिटिव, मिडिल वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे अल्टरनेट होता रहता है, ठीक है। पहले पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और कहां से स्टार्ट करना है, राइट से, लेफ्ट से नहीं, राइट से। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, ये दोनों है ना,
ये दोनों x माइनस थ्री डिवाइड बाई x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो हमें कौन सा रीजन लेना है, हमें मतलब कि वो रीजन लेना है स्टूडेंट जिसमें पॉजिटिव हो, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन क्या है, ग्रेटर देन जीरो का साइन है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो का साइन है, और ग्रेटर देन जीरो का साइन मतलब ये शो करता है कि हमें पॉजिटिव रीजन लेना है। कौन सा रीजन लेना है, पॉजिटिव। अगर यहीं पे ये वाला साइन होता, लेस देन जीरो होता, तो हम लोग नेगेटिव वाला रीजन लेते। अब मुझे एक बात बताओ कि इन सारे रीजन में पॉजिटिव रीजन कौन कौन सा है, पॉजिटिव रीजन इधर वाला है और पॉजिटिव रीजन इधर वाला है, ठीक है। ध्यान दो, हमने सब कुछ लोकेट कर लिया, फिर प्लस माइनस प्लस किया, उसके बाद हमको पता चला कि कौन सा रीजन लेना है, तो हमको इनइक्वालिटी साइन देखे, ये जो एक्सप्रेशन था वो जीरो से बड़ा था, मतलब कि पॉजिटिव था। अगर ऐसे लिखा होता है a इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये होता है कि a इज पॉजिटिव। तो ऐसे ही ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा होगा। तो अगर जीरो से बड़ा है तो हमें पॉजिटिव रीजन लेना है, और पॉजिटिव रीजन कौन कौन सा है, माइनस थ्री के इधर वाला और 5 के इधर वाला। तो जब इसका सोल्यूशन लिखोगे आप, तो देखो x की वैल्यू क्या क्या होगी, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 3, माइनस इनफाइनाइट से 3, उसके बाद चूंकि बीच में कुछ है नहीं तो दो वैल्यू को हम लोग को ऐड करना है। तो जब दो वैल्यू को ऐड करते हैं तो वहां पे यूनियन का साइन बनाते हैं, तो यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, और सब पे ओपन इंटरवल होगा। सब पे ओपन इंटरवल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में कहीं भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगा होता है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। हमें पॉजिटिव रीजन लेना था, तो ये वाला पॉजिटिव रीजन कहां से कहां तक लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 3 और यहाँ पे 5 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया। अब इसका मैं बताता हूं कि इसका फैक्ट क्या है, कि क्यों ये पॉजिटिव आया, क्यों ये पॉजिटिव आया, क्यों ये नेगेटिव आया। तो अब देखो 3 के इधर कौन कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट, 3 के इधर कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। 3 के इधर 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। तो एक काम करो, आप पहले आप कोई एक वैल्यू 3 के लेफ्ट में ले लो, कोई एक वैल्यू 3 और 5 के बीच में ले लो, और कोई एक वैल्यू 5 के बाद ले लो, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, इन दोनों वैल्यूज पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, आप मान लो मैंने लिया x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 लिया जो कि इधर आएगा, इधर इस साइड में, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू 2 लेता तो x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 कितना आता, 2 माइनस 3 दैट इज -1, और x माइनस 5 कितना आता, 2 माइनस 5 दैट इज -3। और हम लोग निकालना क्या था, x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 5, ठीक है, हम लोग ये निकालना था ना। तो मैंने x इक्वल टू 2 ले लिया, x इक्वल टू 2 इसलिए लिया, एक वैल्यू मैंने 3 के लेफ्ट में लिया, एक वैल्यू मैं लूंगा 3 और 5 के बीच में, और एक वैल्यू लूंगा मैं 5 के बाद वाला। तो पहले मैंने x इक्वल टू 2 लिया, तो x इक्वल टू 2 पे x माइनस 3 -1 आ गया, और x माइनस 5 -3 आ गया। अब इसकी वैल्यू मैं अगर पुट कर दूं तो -1 अपॉन -3 कितना आ गया, -1 अपॉन -3 विल बी 1/3। जब मैंने वैल्यू पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू आई कितनी, इसकी वैल्यू आई कितनी, 1/3। और क्या 1/3 पॉजिटिव नहीं है, आफ्टर पुटिंग एनी वैल्यू बिटवीन दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की कोई वैल्यू मैंने ले लिया, उसको जब मैं इस एक्सप्रेशन में पुट किया, इसको मैंने जब इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो मुझे जो इसकी वैल्यू मिली, यानी कि x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, पॉजिटिव। तो इससे ये पता चलता है कि इसके इधर जो भी वैल्यूज लेंगे हम लोग वो हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। और हमें पॉजिटिव रीजन ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 का साइन है, इसीलिए ये वाला रीजन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा x की हर एक वैल्यू पे, ठीक है। सेकंड केस, अब एक वैल्यू लेते हैं 3 और 5 के बीच में, तो मान लो मैंने ले लिया 4, ठीक है। तो उस केस में x माइनस 3 कितना आएगा, 4 माइनस 3 दैट इज 1, और x माइनस 5 कितना आएगा, 4 माइनस 5 दैट इज -1। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 विल बी 1 बाई -1 दैट इज -1। तो अब देखो आप, जब मैंने इसके बीच में कोई वैल्यू लिया, जो 4 था, मान लो मैंने 4 दिया, तो जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रहा है, और हमको -1 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ऐसा रीजन चाहिए वो जो 0 से बड़ा हो, मतलब कि ग्रेटर हो। तो इस रीजन में इस 3 और 5 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव हमको चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो ये वाला रीजन क्या हो गया, नेगेटिव। ऐसे ही जब 5 से बड़ा लोगे, मान लो मैंने लिया x इक्वल टू 6, सॉरी 5 से बड़ा, एक 3 से कम, एक 3 और 5 के बीच में, और एक 5 से बड़ा। तो x इक्वल टू 6 लोगे तो x माइनस 3 आएगा आपका 6 माइनस 3 दैट इज 3, एंड x माइनस 5 आएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1।
और जब आप x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 5 करोगे सो 3/1 दैट इज 3। तो देखो इसमें भी पॉजिटिव आया, तो इससे ये पता चला कि 5 के आगे कितने भी नंबर लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे x की, उसमें वो रीजन क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ठीक है। और अगर डायरेक्टली करना है तो राइट मोस्ट पोजीशन से जाओ, प्लस माइनस प्लस करते जाओ, आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको रीजन डिसाइड करना है तो। और अगर आपको मैथमेटिकली चेक करना है कि कैसे ये हो रहा है तो ऐसे करके देख लो। अगर आपने नंबर लाइन पे कोई दो क्रिटिकल पॉइंट को मेंशन किया है और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रीजन पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, जब भी स्टूडेंट याद रखना एक चीज, आप नंबर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, और यहाँ पे दो वैल्यूज पुट किए जो कि x की क्रिटिकल वैल्यूज है, और आपको चेक करना है कि देखो जैसे ड्रॉ नंबर लाइन पर दो वैल्यूज लिखोगे, ये नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक 1 के इधर, एक 1 और 3 के बीच में, और एक 3 के इधर। तो आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों रीजन में पॉजिटिव रीजन कौन कौन सा होगा। तो आप क्या करो, एक वैल्यू x से 1 से छोटा ले लो, उस पर चेक कर लो क्या आ रहा है एक्सप्रेशन की वैल्यू, उसके बाद 1 और 3 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, और उसके बाद 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये रीजन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये रीजन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और ये रीजन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो -इनफाइनाइट से 3 और 5 से इनफाइनाइट। एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा स्टूडेंट इसी से रिलेटेड, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। After that we will finish this chapter, okay? अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व सिक्स एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। देखो कोई भी फॉर्म दिया हो आपको हमेशा राइट साइड 0 बनानी है, अगर 0 नहीं है तो कुछ ऐसा करके उसको 0 बनाओ, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जैसे भी करके, तो ये 0 तो है ही। अब देखो यहाँ पे कैसा कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है कि a by b इज लेस देन 0 वाला फॉर्म है, ठीक है, a by b लेस देन 0 वाला फॉर्म है। तो दो नंबर का डिवीजन नेगेटिव कब होगा, जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है। तो पहले इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। क्रिटिकल वैल्यू मैंने बताया है, दोनों को 0 के इक्वल पुट करो और x की वैल्यू फाइंड करो। तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या मिलेगी यहाँ से, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, वैल्यू ऑफ x will be 5/6 and -1/4, ठीक है। यहां से 5/6 और यहाँ पे -1/4, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करें, -1/4 इधर आएगा और 5/6 इधर आएगा, ठीक है। फिर से ये नंबर लाइन था, ये नंबर लाइन था। अब मैंने आपको ट्रिक बताया ही है, हमें दोनों का डिवीजन ऐसा वैल्यू लेनी है x की जिससे दोनों का डिवीजन क्या है। देखो इसका मतलब क्या होता है, हमें x की वो वैल्यू लेनी है जिससे इन दोनों का जो डिवीजन है दैट इज 6x - 5 डिवाइड बाय 4x + 1, इनका जो डिवीजन है वो लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव आना चाहिए। तो जो मैंने ट्रिक बताया था आपको, ट्रिक क्या था कि आप राइट मोस्ट पोजीशन से चालू करोगे, तो ये वाला इसको प्लस मान लोगे, उसके बाद वाले को नेगेटिव, उसके बाद वाले को फिर प्लस, ठीक है। और फिर उसके बाद ये करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी इनइक्वालिटी यूज हुई है। जब आप इसको पढ़ोगे तो दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, मतलब कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होनी चाहिए, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। इसका मतलब इस नंबर लाइन पे हमें नेगेटिव रीजन चाहिए। कौन सा रीजन चाहिए, नेगेटिव रीजन। और नेगेटिव रीजन कहां से कहां चालू हो रहा है, -1/4 से 5/6 तक। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी यहां से दैट विल बी 1/4, -1/4 एंड 5/6 डायरेक्टली, ठीक है। और वैसे ही आप चेक कर सकते हो ये प्लस माइनस प्लस आया कैसे है, ये वाला रीजन प्लस कैसे है, ये वाला माइनस कैसे है, ये वाला प्लस कैसे है। मैंने आपको अभी बताया है कि 5/6 से कोई एक वैल्यू बड़ा लेके देखो, तो 5/6 से कोई एक वैल्यू बड़ा होगा 1, तो 1 पुट करके देखोगे तो पॉजिटिव आएगा, दोनों का डिवीजन पॉजिटिव आएगा। इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू लोगे तो नेगेटिव आएगा, और इनसे छोटी वैल्यू लोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों रीजन पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव। और क्वेश्चन में हमें जो भी रीजन चाहिए था वो लेस देन 0 चाहिए था। लेस देन 0 का मतलब
कि ये जो एक्सप्रेशन है x की कौन सी वैल्यू ले जिससे ये एक्सप्रेशन 0 से कम हो यानी कि नेगेटिव हो, और हमें नेगेटिव रीजन चाहिए, तो x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -1/4 से 5/6, और दोनों पे ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप 2-3 क्वेश्चन और कर अपने से प्रैक्टिस करके कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इट इज वेरी इजी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये याद रखो, अगर आपको ट्रिक याद रखना है तो आप दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। राइट से स्टार्ट करो, राइट वाला रीजन पॉजिटिव, मिडिल वाला नेगेटिव, देन पॉजिटिव, और आपको डिटरमाइन करना है कि ये प्लस माइनस प्लस आ कैसे रहा है। ये प्लस माइनस प्लस उस रीजन का साइन है कि इसके बीच में जो भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी हमको पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगी। अगर x की वैल्यू आप -1/4 से छोटी दोगे तो उस रीजन में आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और पॉजिटिव हमको चाहिए नहीं क्योंकि इनइक्वालिटी इज लेस देन 0, which means that we have to get negative number only। हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, और यहाँ पे जो वैल्यू रिप्रेजेंट की है वो x की वैल्यू रिप्रेजेंट की है, और जब x की वैल्यू रिप्रेजेंट की है तो जो भी वैल्यूज लेंगे उस केस में ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, वही चीज हम लोग नंबर लाइन पे एक्सप्रेस की है। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1/4 से छोटी लोगे तो उस केस में ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आएगा, और चूंकि हमको नेगेटिव चाहिए तो ये रीजन लेंगे नहीं। ऐसे ही जब x की वैल्यू 5/6 से बड़ी पुट करोगे तो ये वाला रीजन पॉजिटिव आएगा, और हमें पॉजिटिव रीजन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। और हमको पता कैसे चल रहा है कि हमको कौन सा रीजन लेना है, तो हमें इस साइन से पता चल रहा है। क्वेश्चन में लेस देन का साइन दिया हुआ था तो नेगेटिव, और अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन का साइन दिया हो तो पॉजिटिव। प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा ये चीज अच्छे से। ठीक है, अब ये देखो वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि 2x + 4 डिवाइड बाई x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इधर 0 है नहीं स्टूडेंट, इधर 0 है नहीं, तो हमको 0 बनाना है तो हम दोनों साइड -5 कर दें अगर, तो 2x + 4 अपॉन x - 1 -5, और इधर भी 5 -5। हमें राइट हैंड साइड हमेशा 0 ही बनाना है, इस साइड एक्सप्रेशन रहे और इस साइड 0 रहे, क्योंकि हमें a/b वाला फॉर्म बनाना है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2x + 4 -5x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2x - 5x विल बी -3x एंड इट विल बी +9 डिवाइड बाई x - 1 लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, आप ध्यान दो, हम जनरली x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं स्टूडेंट, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो अगर हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये नीचे वाले में तो कोई चीज आएगा नहीं, ऊपर वाला बन जाएगा 3x - 9 डिवाइड बाई x - 1, और ये साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई -1, मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक है, क्योंकि हम x का कोएफिशिएंट हमेशा आप पॉजिटिव ही रखना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लो। अब वो वाला फॉर्म बन गया ना a/b वाला, और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी यूज हुआ है तो पक्का क्लोज इंटरवल आएगा। तो जब यहाँ पे से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 3x - 9 इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी x इक्वल टू 3 आएगा यहाँ से, और x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया, एक 1 आ गया, 1 is 1 and 1 is 3। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हमारे आ गए 1 and 3। यहां आप लिख लेना, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 and 3। ये क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू होती है। अब कौन सा रीजन लेना है, तो इधर वाला होता है प्लस, इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस। ठीक है, अब देखो हमें पॉजिटिव रीजन चाहिए, तो मतलब कि हमें 1 से इधर वाला रीजन चाहिए और 3 से इधर वाला रीजन चाहिए। इस साइड नंबर लाइन है तो इधर -∞ होगा और इधर +∞ होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, x की जो वैल्यू होगी वो -∞ से कहां तक जा रही है,
1 तक माइनस इनफाइनाइट पे ओपन, और 1 पे क्या होगी, ओपन ही होगी, 1 पे भी ओपन ही होगी। 1 पे ओपन क्यों होगी स्टूडेंट? अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो स्लैक इनइक्वालिटी यूज हुआ है। 1 पे ओपन इसलिए होगी क्योंकि अगर इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है, तो 1 पे ओपन ही रहेगा, ठीक है। और चूंकि बीच में कुछ है नहीं, तो दो को हमको ऐड करना है, तो एडिशन में यूनियन लेते हैं, 3 ले सकते हैं, तो 3 पे क्लोज्ड एंड इनफाइनाइट पे ओपन, सो x की वैल्यू ये आएगी आपकी, ठीक है। So that will be the solution of this question, student. I hope it is clear to you. So this will be the solution of this question. तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट ले लो, नंबर लाइन का रिप्रेजेंट कर दो आप, और देखो कौन सा रीजन चाहिए हमें। ग्रेटर और इक्वल टू का साइन चाहिए था, तो ग्रेटर और इक्वल टू, देखो यहां तक तो सेम था। इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, इसके बाद ये हुआ कि हमें x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है। तो जब आप x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओगे तो आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मुझे ये x पॉजिटिव बनाना था, तो -1 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3x - 9 हो गया, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज, तो ये हो गया। अब आप यहां से x की दो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लो, 1 और 3, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो नंबर लाइन 3 रीजन में डिवाइड हो जाएगा, तो राइट मोड से स्टार्ट करेंगे, तो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस। फिर यही रीजन चाहिए हमको x की वैल्यू, तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 और 3 से इनफाइनाइट। 1 पे ओपन इसलिए होगा क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि p बाई q में q कभी 0 नहीं होना चाहिए, और अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो 1 पे ओपन है और 3 पे क्लोज्ड है, दोनों पे क्लोज नहीं होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे ही आप कुछ और क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आप कर लेना। एनसीईआरटी से जितने भी हो सकते थे मैंने सारे टाइप की बता दिए हैं। एग्जाम्पलर में 1-2 टाइप और है जो कि आप खुद से कर सकते हो। अदरवाइज फ्रॉम माय साइड आई हैव एक्सप्लेन यू all things which is needed for solving linear inequalities. Okay, so by doing this we have finished this chapter. I hope you are studying, and please go through all the parts so that you can understand the concept of linear inequality. Okay, so by this chapter is finished. From the next class we will start a new chapter. Okay, so till then students, have a nice day, take care, thank you.